ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया ना। मैडम गुड आफ्टरनून ऑल। Today we are going to discuss about the drawing tools. Okay? Because whenever we are taking a class, we are doing textual things we are doing perfectly, but whenever I am also observing, we are also doing. Whenever we have to do any drawing activity online, then we are using our whiteboard or blackboard, whatever it is our own. But sometimes what is happening, some of the teachers are taking the class on OBS. When they are taking the class in OBS, they are having enough textual material, but they are not having this whiteboard to do the drawing. So what they are doing, कि उनके टेक्स्ट मटेरियल में जो फिगर्स होते हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग दैट फिगर ओनली वर्बली. अगर हम बना के उसको एक्सप्लेन कर दें, इफ यू आर गोइंग टू गेट अ प्लेटफॉर्म ऑन देन एंड देयर ऑन द कंप्यूटर, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्रॉ करके. ठीक है, तो गूगल इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ टूल. उसके बाद क्या होता है, गूगल ड्राइंग इज अ टूल थ्रू विच यू कैन मेक this type of worksheets also. जैसे से फॉर एग्जाम्पल सेकंड थर्ड के बच्चे को मैथ का टीचर पैरेलल लाइंस अगर बता रहा है या किसी भी क्लास में पैरेलल लाइंस का है कॉन्सेप्ट, तो यू आर गोइंग टू गिव द असाइनमेंट ऑन पैरेलल लाइंस. उसमें क्या है, आपने 10-12 फिगर्स दे दिए. फ्रॉम दोज फिगर्स द स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट और मार्क द पैरेलल लाइन फिगर. ठीक है, तो उसके लिए भी असाइनमेंट हम बना करके उस पर अपलोड कर सकते हैं, एंड दैट कॉपी विल बी जनरेटेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. नॉर्मली व्हाट वी आर डूइंग, व्हेनेवर वी आर गिविंग द असाइनमेंट्स, द सिंगल कॉपी इज गोइंग टू द स्टूडेंट. जैसे क्वेश्चन पेपर हमने शेयर किया, तो एक क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों को दिया है, दे आर डाउनलोडिंग एंड दे आर डूइंग. बट ये जो वर्कशीट है उसमें क्या करना है आपको, वो उसमें अगर मान लो एक बच्चे ने अपडेट कर दिया, तो दैट कैन नॉट बी अपडेटेड बाय अदर. So in this case, you have to create the separate copy for all the students. That feature is also available with Google Drawing. वो separate copy सारे बच्चों के लिए बनाएगा, और सारे बच्चों को क्या करना है, तो सॉल्व करके फिर जब अपलोड करेंगे तो ये बता पाएंगे कि सी की कौन सा बच्चा कैसे किया. ठीक है, तो 2 ऐप बताने जा रहा हूँ, एक गूगल ड्राइंग और दोनों अपनी लॉगिन में रहता है. जब आप गूगल से, इसलिए बता रहा हूँ कि whenever we are taking the class, this is easily available. जैसे ऑब्वियस की बात करें तो ऑब्वियस पे आप क्लास दे रहे हो, तो ऑब्वियस पे देने देगा, आप वहीं पे ओपन कर लेंगे गूगल से ऐप और उसको कर सकते हो. सॉरी, ठीक है. तो सबसे पहले वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ गूगल ड्राइंग का, कि कैसे यूज़ करते हैं गूगल ड्राइंग को. उसके बाद हम लोग, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा आपको. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out thanks to flawless writing. In this tutorial, we're going to look at one of the kinds of documents that you can create in Google Drive. And it's one that I think gets overlooked very often and goes unused really by most people. And what is it? It is Google Drawings. You are capable to access the Google Drawing in Google Classroom as well as in Google Drive. जब भी आपको Google Docs से डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, then only you are getting the option of Google Drawing. ठीक है, अलग से आपका कहीं से आएगा नहीं डॉक्यूमेंट. और ये ड्राइंग टूल है जो कि आपने नॉर्मल MS पेन पढ़ा है, टच पेन आपने अगर यूज़ किया होगा, जो भी ड्राइंग टूल्स आप यूज़ करते हैं, इन द सेम वे वी आर गेटिंग
the tool. ठीक है, एक बार आप लोग देखिए. So if you click here on new, you can create a folder, you can create a Google Doc, a Google Sheet, etc., and a Google Form. And if you haven't seen my video tutorials on Google Drive, I would recommend that you watch that to learn about Google Drive and these types of documents that you can create in Google Drive. Also, I have tutorials about Google Forms and how it works. But in this tutorial, let's focus on Google Drawings. So I'm going to go ahead and click on that to open up the Google Drawings interface, and it gives me a blank canvas with which to work and a few tools here in the upper left corner. And Google Drawings is just what it sounds like. It's for making drawings. You'll notice here in the upper left, the title of this drawing is Untitled. So I'm going to click on that, and I'm going to call this Rose. Okay, I'm going to be very ambitious and hope to draw a rose here. So now that I've named that, of course, I could put it in a folder, and sometimes it's better just to create a folder, go to the folder, and then from inside the folder, create a new drawing or a new document, and that would automatically file it where you want it to go. But I can also do that here from inside Google Drawings, and I could create a new folder. I'll just call this Drawing Practice. Click the check mark and move here. And so this drawing now is inside a folder called Drawing Practice. Okay, so I'm about to attempt to draw a rose using the tools that are here. The first thing that you should be aware of when using Google Drawings is that you're not limited to using just this canvas that you're given. This is the default size, but you can go to the lower right corner, click and drag to make a much smaller image. Now, notice what happened. I made it smaller, and then everything got zoomed in based on the new, smaller canvas. So because of that, it's hard to tell that it really worked, but it did. And as you can see this time, when I made it less wide, that made it more obvious that I had changed the drawing dimensions. Okay, so this is more like what I'm looking for. I'm going to create a drawing that fits basically in these dimensions. I might need to stretch it out a little bit more, make it taller, but that's going to serve me pretty well for what I want to do. Okay, so next, I'm going to go here to the upper left, and I can use some of these tools to create my drawing. So I'm going to go here to line, and you'll notice that there are straight lines, there are also curved lines, scribbles, and so forth. So I'm going to start with a scribble, and let's see how I do here. I'm going to try to draw a rose. Now you'll notice that Google Drawings is kind of helping me out. My lines are really not quite that smooth, but Google Drawings is helping me to make this look a little better than I normally could do. So that's nice. So there's some smoothing going on. And I can continue to draw this rose the best I can, just using the scribble tool. I'm actually fairly happy with how this is turning out at this point. Now, of course, I could go in and change it to, let's say, a line, and I can just click, and then the line appears, and then I can drag one end of the line to put it where I want it to be. Now, another way to do that is just to click once, hold the click, and then drag the line where you want it to be. Okay, now that's a pretty thick stem for this rose, so I'm going to click here on the arrow tool, select the line, and bring it in a little bit to make it a little more narrow. Okay, great. Might look a little too straight, actually, but I'm pretty happy with that. Now we also have some shapes here, some generic shapes. You can click on the top option there for shapes, and you can see there's all sorts of shapes that you can use in your drawings. Okay, I would like to use this triangle, so I just click on triangle and then click on the screen, and it produces a triangle that I can use. I can also manipulate it. I can make it more narrow, more wide, whatever I need to do. Notice that there's also that little circle that's extended above the shape that I just put in. I can click on that and rotate to tilt the shape. Okay, so that'll serve as a thorn, I suppose, for my drawing. Also in shapes, we have arrows that we can bring in. There's call-outs. These are great for cartooning and comics and things like that for students to use or teachers. And there's also math equations symbols that you can pull in and use. Okay, now at this point, I would like to add some color. Everything's just so black and white right now. So I'm going to click here on a part of my rose, and notice that I get additional tools. Okay, first of all, I could change the line weight
to make it thicker if I would like to. In this case, that doesn't really match what I want to do, so I'm going to undo that. I can also go here where it says line color, and I can set that to be another color. Okay, so I could go in and make these lines red to help with my rows. Now, I could continue to do that, of course, but let me point here, or choosing a polygon. Like this, we can draw a figure and we can give the assignment for labeling. EVS teachers, science teachers can use the pictures like that. You can directly insert the picture also. You are capable to see here the option. From here you can insert the picture and you can label the picture directly also. Okay. How to use this one in Google Classroom, that I am going to show you. Any of the class you have to open. You have to go in classbook. Create. असाइनमेंट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द ऑप्शंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट द ऑप्शंस। हियर वी कैन सेलेक्ट गूगल ड्राइंग। Now your Google Drawing is open. Okay, so say for example the math teacher is wanting to give the assignment, so they have to use the shapes. You have to use the shapes. You are having equations also. Equation को आप select करेंगे तो equations भी जो आपके basic equations हैं, that is available and that can be inserted. So that can be done. Say for example this shape, triangular shapes, and this is getting saved. आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, that is automatically saved in Google Drive. Share with one person or multiple persons. यहाँ से आप सेव करके स्किप कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, साइंस टीचर कैन यूज इट फॉर साइंस असाइनमेंट और मैथ टीचर कैन यूज फॉर मैथ असाइनमेंट। बाकी के टीचर्स भी देख सकते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। वेयरएवर यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू यूज ड्राइंग टूल्स। आप अलग से भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अदर ड्राइंग टूल्स आर टच पेंट, MS पेंट बाय डिफॉल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। ठीक है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। यू कैन क्रिएट द फाइल एंड यू कैन अटैच दैट फाइल विथ दिस वन। आप जब अटैच का जो ऑप्शन आ रहा था वहां से भी अटैच कर सकते हो।
here you can see make a copy of each student. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सारे बच्चों को सेपरेट कॉपी चाहिए। क्वेश्चन पेपर तो सेपरेट कॉपी डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है क्वेश्चन पेपर में अभी सॉल्व नहीं कर रहा। बट ये जो असाइनमेंट है इसमें बच्चे को इसी में करना है। आपने फिगर वाला क्वेश्चन दिया है और उसको बताया कि आइडेंटिफाई द फिगर, तो उसमें क्या है, सर्कल करेगा या फिर टिक करेगा, कुछ न कुछ आपने लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस में। तो उसके लिए आपको सेपरेट कॉपी करनी है, क्योंकि अगर आपने सेपरेट कॉपी नहीं करी तो क्या होगा, सिंगल फाइल जाएगी सारे बच्चों को एंड दे आर अनएबल टू एडिट इट। फिर बाकी के जो ड्यू डेट्स हैं ये सारे सब सेम है पहले की तरह। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक आप बताना था, इसमें ये ड्राइंग के टूल्स हैं एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, सेंट्रली बताते हैं, बहुत सारे टीचर्स वेन डायग्राम बताते हैं, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सर्कल्स है, बैकग्राउंड को कलर करके, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे भी आप यूज कर सकते हो, बच्चा जो है कलर करके भेजेगा इसमें, तो दिस कैन बी यूज्ड लाइक दैट। उसके बाद जो दूसरा है, जो मैंने वो व्हाइट बोर्ड वाला जो बताया, ऑब्वियस के टीचर्स, ये हो गया आपका ड्राइंग टूल्स। जो ऑब्वियस वाले टीचर्स हैं उनके लिए क्या है, जैम बोर्ड। ठीक है, तो मैडम बता रही थी जैम बोर्ड जो है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ व्हाइट बोर्ड, और ये सारे टूल्स जो इसमें था ना, वही टूल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, आप यूज कर सकते हैं। आपको लॉगिन, अपना लॉगिन करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना है। कोई लॉगिन है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना पड़ेगा। क्लासरूम के लिए नहीं, ये क्लासरूम के लिए नहीं है। क्लासरूम में ड्राइंग के लिए ड्राइंग टूल है। ये जो है, जब ऑब्वियस पे आप क्लास ले रहे हो और कुछ आपको अगर एक्सप्लेन करना है, मतलब कुछ आप लिखना चाहते हो या कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम योर मटेरियल, जो आपको बोल के नहीं हो सकता, चाहते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो आपको बोर्ड चाहिए ना, और आप वहाँ से उठोगे नहीं फिर, है ना, दिखाई नहीं देगा फिर। अब जैसे मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऑब्वियस पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये टूल आपको व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा वहाँ पे देन एंड देयर, और वो आपको, वो बच्चों को विजिबल है, क्योंकि ऑब्वियस पे आपकी स्पीड विजिबल है। ठीक है, स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अभी देखिए, ये क्रिएट, ये आ गया आपका व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड आ गया। आप यहाँ पे, ये पेन है, इससे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्राइंग के टूल्स हैं आपके। अच्छा, हिंदी नहीं आएगा ना सर? हिंदी आएगा? हिंदी का लैंग्वेज का देखा नहीं है मैंने, लैंग्वेज सेट करने से शायद आ जाए, हिंदी का फॉन्ट होगा तो आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ ये पेन है, पेन से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हाँ, माउस बेसिकली ये ड्राइंग के लिए, ये ड्राइंग के लिए इतना ज़्यादा आप लिखने का काम नहीं कर सकते। 2-4 लेटर अगर आपको लिखना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं 1-2 लाइन में। अदरवाइज फिर माउस में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, या फिर आप वो आईपैड पे काम कर रहे हो तो आपको, हाँ,
हाँ सर ये एडिशन नंबर लाइन्स फ्रॉम जंप करके करते हैं उसके लिए यूज हो जाएगा। हाँ हाँ, ये उसके लिए भी यूज हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा चलो, पिक्चर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बना दीजिए आप, वो उसमें होगा गूगल ड्राइंग में, वहाँ पे लाइन था ना, लाइंस, फिर छोटे छोटे लाइन से आपने वो कर दिए, मार्क कर दिए। उसके बाद जो पिक्चर इंसर्ट पिक्चर वाला था उसमें फ्रॉग एक छोटा सा लेकर के आप डाल दीजिए। वो अब वो ड्रॉ कर, जैसे कि उसको सेट अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो ग्राफिक्स हो गया। अच्छा वो ग्राफिक्स हाँ। नहीं, क्योंकि वो नंबर लाइन में अगर आपको जैसे स्किप काउंटिंग कराना है या 3+5 कराना है तो वो उसका वो वाला जो करना है नहीं वो नहीं पॉसिबल, इसमें सिर्फ ड्राइंग हो रहा है, वो तो मूवमेंट आ गया ना। जब मूवमेंट आ गया तो आपको एनिमेट करना पड़ेगा, एनिमेशन इसमें नहीं है। एनिमेशन आप पीपीटी में कर सकते हो, ठीक है। उसमें पीपीटी के अंदर में टाइमिंग डाल के भी आप रिहर्स टाइमिंग में जाएंगे तब भी उसके साथ में एक्टिविटीज कर सकते हो। पीपीटी में हो जाएगा। हाँ पीपीटी में भी हो सकता है। इसमें व्हाइट बोर्ड में ना एक ऑप्शन था, जैसे अगर जो मैंने दिया, सपोज मैंने स्पेलिंग दिया और बच्चे को खुद वापस भी लिखना है व्हाइल आई एम टीचिंग ऑन प्रोसेस, तो वो वाला ऑप्शन कैसे है? डिक्टेशन टेस्ट के लिए व्हाइट बोर्ड जब हमें वो वाला व्हाइट बोर्ड ऐप पे था सर, व्हाइट बोर्ड ऐप पे वो व्हाइट बोर्ड आप होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड जैन आप बोर्ड पे ही दिया था, जब जहाँ हम लोग का भी अकाउंट आता है बच्चे का भी अकाउंट आएगा, लेकिन बच्चे के पास वो ऐप होना चाहिए। तो फिर नहीं, वो बच्चे लोग के पास अगर गूगल का अकाउंट है तो ऑब्वियसली उसके पास जैम बोर्ड भी होगा। हाँ, तो जब जिसके पास भी गूगल का अकाउंट है उसके पास जैम बोर्ड होगा, क्योंकि ये गूगल के ऐप्स है। नहीं, तो जब सर ये ट्रेनिंग जब चल रहा था तो जैन बोर्ड मेरे सेल पे नहीं था, लेकिन मेरे पास वो गूगल में है ही, बट वो मुझसे ओपन नहीं हुआ जब तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। क्या जैम बोर्ड अलग से? जैन बोर्ड अलग से। नहीं 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 नहीं, वहाँ से अगर वो आप अटेंड कर रहे हो क्लास और वहाँ से रिक्वेस्ट गई है तो आप उस लिंक से ओपन करोगे तो अपने आप ही ओपन नहीं होगा। हुआ सर, फिर इंस्टॉल करने पर हुआ। आप ये कैसे होगा? नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं, ये वो कुछ और पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि एट द सेम टाइम अच्छा टीचर को भी अपडेट करना है, बच्चे को अपडेट करना है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें ये पॉसिबल है, सारे ऐप में पॉसिबल है, बट इसमें पॉसिबल नहीं है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। चेक करके बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेरे पास 2 लॉगिन है, मैं दोनों लॉगिन से चेक वो कर वाला ऑप्शन बहुत अच्छा था, वो- स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। हाँ हाँ, तुम्हें भेजूँ क्या? ये लिंक दिखा देता हूँ ना। हाँ एक मिनट रुको, कौन सी क्लास में मैंने किया था? 8 क्लास में। नहीं, ये तो जैम बोर्ड ओपन किया है ना, जैम बोर्ड ओपन किया है ना, ये उसको लिंक चाहिए आपका, आपका क्लास में थोड़े ना लिंक ओपन चाहिए। किया इसको, इसको क्लास में ओपन नहीं किया है मैंने, ये अलग ये अलग से- वो ड्राइंग था और ये जैम बोर्ड। क्लास में गूगल क्लासरूम में जैम बोर्ड ओपन नहीं होगा। शेयर का ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ, वो ऑप्शन। शेयर आप कर सकते हो लिंक देके, वही तो बता रहा हूँ कि दोनों के पास आईडी है तो दे कैन यूज दिस वन, लेकिन ये लिंक उसको शेयर करना पड़ेगा। तो ये बोल रही है कि लिंक देने के बाद भी इनके सिस्टम पे मोबाइल पे ओपन नहीं हुआ। जब आपके पास गूगल आईडी है तो क्यों नहीं ओपन होगा? फिर वो ऐप इंस्टॉल करने पर ही हुआ। हाँ, मोबाइल फोन में तो हमें ऐप तो सारी ऐप इंस्टॉल करना होता है। डॉक अगर नहीं होगा तो वो उससे नहीं लेता, हाँ, डॉक में उससे। नहीं खुलता है। वो तो इंस्टॉल करनी है, मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट इंस्टॉल करने के बाद में बोथ कैन एडिट द फाइल्स, ठीक है।
तो ये था। बाकी के और भी ड्राइंग टूल्स हैं, जैसे टच पेंट है। अब टच पेंट में यूज़ करके, टच पेंट और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा एडवांस होता है। उसमें आपको स्टैम्प्स मिलते हैं। स्टैम्प्स में आप क्या कर सकते हो, स्टैम्प्स में आप एनिमेट भी कर सकते हो, स्टोरी भी बना सकते हैं। इंग्लिश के टीचर्स हैं या साइंस के टीचर्स हैं तो स्टोरीज भी बना सकते हो, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट देखता हूँ टच पेंट है कि नहीं इसमें। टच पेंट तो होना चाहिए। पेंट इसमें नहीं है, बट वो भी यूज कर सकते हैं हम ये टूल्स के लिए और असाइनमेंट्स देने के लिए। और कोई क्वेश्चन है अगर जैम बोर्ड से तो बताइए। इसके अलावा जैम बोर्ड की जुगाड़ ऑब्वियस है, क्या इसको यूज करेंगे ऑब्वियसली टाइम पे, मतलब आप कभी भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जो हमने बनाया है, ये जो सीट बनाई है, दैट कैन नॉट बी सेव। आप सेव भी कर सकते हो उसको, PDF के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। एक मिनट मैं उसको सुन ही नहीं जाता। हाँ, पूछिए क्वेश्चन। पेंसिल टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे स्टिकी नोट्स है, इसके थ्रू आप जहाँ नोट्स भी डाल सकते हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यूज करके आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। सर्कल दिया है वो डायरेक्ट पिक्चर ऐड करने के लिए है। कौन सा? ये वाला सिलेक्शन के लिए, ये शेप्स के लिए। हाँ, वही पिक्चर ऐड करने। ये शेप्स के लिए नहीं, शेप्स के लिए खाली सर्कल ही है। नहीं, बाकी भी है, एरो मार्क है ना उसके सामने। ये शेप्स है, एरो मार्क है ना, मतलब कि वो एक्सपेंड होगा। यहाँ पे भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, वो जो हमने बताया वो सारा यहाँ पे भी कर सकते हो। बट वो क्या, ड्राइंग वाला जो है आपका गूगल क्लासरूम में ओपन हो रहा है तो डायरेक्टली वो अटैच हो जाएगा वहाँ से वहाँ। और ये एक्सप्लेन करने के लिए है।
अगर इस फाइल को भी आप यूज़ करना चाहते हो सेव करके आप फिर वो गूगल क्लासरूम में आप सीधा वो अटैचमेंट में डाल सकते हो। ऊपर कलर की का भी ऑप्शन एक हाँ। डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं है। स्कूल की तरफ से एक वो तो ट्रेनिंग के बाद पता है क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद तो सबको वो क्या नाम आईपैड देना चाहिए था। नहीं एक Then only we are capable to use all the apps. जितने भी apps उन्होंने बताए ना मैडम ने, उसमें से एक भी ऐप जो है वो ऐसे सिस्टम पे यूज भी नहीं कर सकते with all the permissions. एक तो सबसे पहले वो सारे पेड है, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ गूगल के ही ऐप बता रहा हूँ जो कि फ्रीवेयर है। अब वो पेड वाला सॉफ्टवेयर बता करके ओपन करके और वो लिमिटेड खाली बता दिया, फिर बाद में आप जब यूज करने जाओगे, जैसे पैडलेट है, पैडलेट यूज करने जाओगे तो आपको 4 पैडलेट्स मिलेंगे, जैसे 4 आपको वो मिल गए क्लासरूम में जो लगाते हैं बुलेटिन बोर्ड वैसा, अब उसी 4 में आपको यूज करना है। जैसे 5वां या अदर रिसोर्सेज के लिए आप क्लिक करेंगे बस वो प्रीमियम वाला आ जाएगा, यू हैव टू पे द मनी, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे एंड सब सारे सॉफ्टवेयर के अलग अलग है, किसी का $5 पर मंथ है, किसी का $45 भी है पर मंथ। उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ यूज करो ना, नहीं वो तो आप 1 महीने के लिए पे करेंगे, 1 महीने तक एक्टिवेट हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद आपको मैसेज आने लगेगी आप फिर वो उसके पैसे दो। वो अगर कर रखा ऑटो पे तब वो तो ऑप्शन देते हैं ऑटो पे का, बट वो कर रखा है तब, नहीं तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा पे। ये जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले हैं ना वो ऑटोमेटिकली कर देते, फिर नॉर्मल आदमी को पता भी नहीं है कैसे। हाँ पहले के ना, हाँ पहले हमने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। हाँ हाँ उसमें वो डिविजन का साइन सिंबल और फ्रैक्शन नहीं आता है। गूगल फॉर्म में गूगल फॉर्म्स में फ्रैक्शन और वो नहीं लेता है। वो कैसे फ्रैक्शन फॉर्म वो मुश्किल हो गया थोड़ा तो 2/5 लिखना है तो मतलब आप क्या करो ना, स्क्रीनशॉट या ये पिक्चर है उसका वो लेके करो और इंसर्ट करो उसको। लेकिन उस वो बॉक्स इंसर्ट में नहीं नहीं होता आता है, इंसर्ट नहीं होता है, बच्चा को इंसर्ट नहीं होता है। जब आप गूगल फॉर्म बना रहे हो तब नहीं हो रहा। ऐसे पूरा स्पेलिंग नीचे ठीक है अभी देखते हैं। नहीं अभी फ्रैक्शन के फिर हमने क्या करते हैं स्लैश डालते हैं, अपने साइड पे स्लैश डालते हैं। डॉग से बोलो इक्वेशन भी नहीं आता है। डॉक में नहीं आ रहा, डॉक में तो इंसर्ट का ऑप्शन होता है ना, उसमें तो सारे सिंबल्स हैं। फॉर्म में टाइप करना रहता है ना तभी। हाँ इसमें मतलब ऑप्शंस में जब डाल रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और डिवीजन, हाँ डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। अच्छा परसेंटेज आ रहा है वो नहीं आ रहा सिंबल हाँ। के पास सेक्शंस में ऐड इमेज करके तो कर सकते हैं ना। वो पूरा बड़ा आ जाएगा, छोटा नहीं आएगा। इसके लिए ऑप्शन है ना, इसके लिए ऑप्शन है कि तुम आप ये करो, इसमें अभी जो दिखाया था ना मैंने जैम बोर्ड में आ रहा है ना इक्वेशंस आ रहे थे अभी, इक्वेशन से आप क्रिएट कर लो, ठीक है। जामबोर्ड में तो इतना सारा नहीं है। इक्वेशंस दिखाया था ना,
इक्वल प्लस और माइनस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं उसमें फ्रैक्शन का है ही नहीं उसमें फ्रैक्शन करने का इक्वेशंस दिखाए थे ना मैंने पूरे। हाँ नहीं नहीं Plus, प्लस minus, माइनस डिवीजन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन सब डिवीजन एक काम करने से एक दिन हम मैथ्स वाले के लिए थोड़ा समझाएंगे। हाँ नहीं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए ना कि क्या करना है। जैसे अब ये सिंबल लाना है गूगल इसमें फॉर्म में, तो वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में हाँ वही आप देख सर्च करके, या दूसरा ऑप्शन बता दूंगा आपको। जैसे पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं सिंबल लेके, तो पिक्चर बड़ा हो जाएगा, उसको छोटा करने का करेंगे। नहीं जैसे ऐसे? भटका मैडम जैसे आप लोगों को बताई थी कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो वर्ड को इंसर्ट वर्ड में बना के फिर उसको वर्ड वाला कॉपी ही उसमें इंसर्ट करनी, क्योंकि हिंदी के लिए वो लोग वही करते हैं, अलग से एक अटैच करते फाइल लास्ट में फाइल या एक बार नहीं आता हैं अटैच करने के लिए बताई थी। और उसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन 1 2 3 करके उसके ऑप्शंस वहाँ पे देने के लिए फॉर्म्स नहीं वर्ड बाकी एक वर्ड फाइल ओपन करके क्वेश्चन ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तुम ऐसे भी तो ये यहाँ से भी अटैच कर सकते हो पिक्चर के फॉर्म में। दिया हाँ इसी किया क्वेश्चन तो पिक्चर का क्वेश्चन को नोटबुक में अगर क्वेश्चन है उसकी फोटो ले ली और वहाँ पे अटैच कर दिया। अगर आपको टाइप करना है 2/5 या x स्क्वायर तब वो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, तुम्हें क्वेश्चन पता है तो आपने नोटबुक में लिख लिया, उसकी फोटो ले ली और उसको इंसर्ट कर दिया वहाँ पे। लेकिन उसका फिर मार्क्स सही नहीं ऑप्शंस आप दो ना उसमें, ऑप्शन में फिर से वही प्रॉब्लम है 2/5 नहीं लिख सकते। ऑप्शंस में इक्वेशन नहीं दे सकते। ऑप्शंस में अगर इक्वेशन वाला आंसर आ रहा है, नहीं ऑप्शंस में भी पिक्चर का ऑप्शन है, ऑप्शंस में भी पिक्चर का ऑप्शन है। नहीं इतना बड़ा नहीं आता, उसको रिसाइज भी कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो। और अगर बड़ा भी आ रहा है तो कौन सा तुम्हारे सिस्टम का मेमोरी यूज हो रहा है, कौन सा तुम्हारे सिस्टम का मेमोरी यूज हो रहा है जो तुमको दिख रहा है। अब पिक्चर यूज करके कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन की पिक्चर ले लिए, ऑप्शंस भी पिक्चर में आप दे दो, फिर टिक मारने वाला है ना ऑब्जेक्टिव। गूगल फॉर्म में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें राइटिंग वाला होगा। वो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया था, हाँ। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, हम लोग कैसे आंसर कर दिया सॉल्यूशन वैसे ही वो लोग को कहे तो ही मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अगर उसको टाइप करना है तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर आपने ऑप्शंस दिए हुए उसको टिक करना है तो वो हो सकता है। इसे भी मल्टीप्लिसिटी कर दी उसने। तो वो तो करना ही पड़ेगा। आंसर तकलीफ कर देता है, छोटा आंसर का लाइन एक वर्ड भी इधर से उधर हो गया तो पूरा गलत दिखा देगा। तो वो तो जहाँ पे अब ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना अपने को मैनिपुलेशन। इसी के लिए तो इतने सारे टूल्स हैं, इससे नहीं हुआ तो दूसरा वाला, दूसरे वाले से नहीं हुआ तीसरा वाला यूज करना है। इसी के लिए तो इतने सारे टूल्स अपने को पढ़ना पड़ रहा। अब हर काम एक ही टूल से अगर हो जाता तो इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में नहीं होते थे, है ना। अगर गूगल ड्राइंग से ही सारा काम हो जाएगा तो टॉक्सपेंट क्यों यूज होगा, टचपेन से ही सारा काम हो जाएगा तो गूगल ड्राइंग फिर क्यों यूज होगा। तो वो अपने आप अपने को सीखना भी है कि भाई कैसे हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे दूसरे ऐप से। खाली ये नहीं कि एक ही ऐप के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए। ऐसे गूगल डॉक पे तो सारी चीज़ें हैं, वो इक्विवेलेंट टू वर्ड है, उसमें सारे सिंबल्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इंसर्ट पे जाओगे तो सिंबल्स आएंगे। फ्रैक्शन का तो नॉर्मल में भी ऐसे भी वर्ड में अगर आप टाइप करोगे तो आता है, बट वहाँ पे सिंबल होता है तो आप इंसर्ट कर लेते हो। फ्रैक्शन का सिंबल ही नहीं होता, जो हम सीधी लाइन वाला जो
डॉट डाल के डालते हैं, वो कहीं भी कीबोर्ड में सिंबल ही नहीं है ना, वो सिंबल ही नहीं है कीबोर्ड में, इसलिए नहीं आता। वर्ड का कॉपी करके पेस्ट करेंगे उसका। कौन सा? नहीं आता वो नहीं होता, नहीं दिखाता, हमने कॉपी करके पेस्ट कर नहीं वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सिंबल ही नहीं है नहीं। उस ऐप के अंदर में, वो सिंबल रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए नहीं होता। ठीक है, बेसिकली ये ड्राइंग टूल जो है वो उसी के लिए था कि आप सारे बच्चों को सेपरेट कॉपी दे सकते हो और वहाँ पे उनको इवेल्युएट कर सकते हो, और सारे बच्चे जो है अपनी सेपरेट कॉपी में जो भी उनको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करना है टिक करके या गोला करके, वो जब सबमिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने बच्चों ने सबमिट किया, और सबकी सेपरेट आएगी कॉपी आपके पास। बच्चों पे क्लिक करेंगे तो उसकी सीट जो है, सॉल्व्ड सीट, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और वो चेक कर सकते हो कि सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए गूगल ड्राइंग यूज कर रहे हो। ठीक है, बाकी गूगल फॉर्म का जो अब पूछे हो तो वो देखूंगा मैं कि है कोई ऑप्शन या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्लास में आपको बताऊंगा। और कोई डाउट है तो बताइए ड्राइंग में। ड्राइंग के लिए सबको समझ में आया कैसे यूज करना है? असाइनमेंट में जाके ड्राइंग में जाना है, और जब हो जाए तो आपको नंबर ऑफ कॉपीज स्पेसिफाई करनी है। फिर ऑब्वियस वाले जो है वो ये ऐप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस वाले ड्राइंग के लिए या लेबलिंग के लिए, जैसे हाँ चैम बोर्ड, ये यूज कर सकते हो आप एक्सप्लेन करने के लिए। और उसमें क्या है, जो ऊपर में 1 2 3 आ रहा था वो जैम बोर्ड था। एक बोर्ड अगर आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप नेक्स्ट बोर्ड यूज कर सकते हो। इसमें मल्टीपल वाइट पेजेस आएंगे। उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है ना जैम बोर्ड के अंदर में, आप ये जो वो वाली सीट होती है ना आपकी मैथ्स वाली, ग्राफ वाली सीट, हाँ उस तरह से भी कर सकते हो। उसमें भी ड्रॉ करके बता सकते हो। उसमें बैकग्राउंड में जाओगे ना तो आपको हर तरह के सीट्स, अलग अलग टाइप के सीट्स मिलेंगे। वो सीट्स चेंज करके आप वो ग्राफिकल प्रॉब्लम भी करवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए वो ज़्यादा यूजफुल है। मतलब ये जो दोनों साइंस और मैथ वालों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी लैंग्वेज वाले भी उतना यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। बाकी और कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, आप लोग यूज़ करेंगे, अभी से यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर कुछ आता है तो आप बताइएगा। आपका मैं देखूंगा कि दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। घर पे मैं आज करके देखूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होगा या नहीं। मेरे हिसाब से होना चाहिए। ऑनलाइन में हमारे जितने भी ऐप्स हैं उसका फीचर ही यही है। और ये ब्लेंडिंग का मतलब ही होता है फेस टू फेस। मतलब बच्चा जब कर रहा है तो उसको अपन एक्सेस भी कर रहे हो उसी टाइम, तो होगा ही होगा। आप कर रहे हो उस समय, अगर वो चाहे, आपने परमिशन अगर दी हुई है तो वो उसमें एडिट कर सकता है। और menti.com में भी होता है सर। वो देख के इसमें पहले तो जैम बोर्ड बताता हूँ। वो तो जितने भी है बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन सारे में एक लिमिटेशन के बाद आपको पे करना है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है। अभी ऑनलाइन ओपन करके बहुत सारों में लॉगिन भी बना रखा है मैंने, बट वही लिमिटेड है। पैडलेट मेरे में इंस्टॉल्ड है, वो करके देख लिया, बट वो क्या लिमिटेड है। अब उसमें मैंने वो क्रॉस कर दिया, चारों यूज़ कर लिए पैडलेट। अब जैसे ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ वो स्क्रीन आ जाती है पे करने के लिए, फिर उसका क्या फ़ायदा। अब ड्राइंग टूल जैसे इमेजेस मेरे को लेने हैं उसमें डालने के लिए, तो वो मैं निकाल ही नहीं सकता इनके वो टेम्पलेट से, तो क्या फ़ायदा फिर। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसलिए गूगल टूल्स को बता रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आपको, और आपको भी बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। वो पूरा का पूरा फ्री है, सिर्फ गूगल अकाउंट होना चाहिए। सर ये जो OBS जो हम चलाते हैं, स्क्रीन पर जो भी है वो हम बच्चों से शेयर कर सकते हैं। तो चाहे वो मैप हो, चाहे वो जैम हो, कुछ भी। लेकिन जब हम नॉर्मल क्लास लेते हैं वेबकैम का, तब हम ये यूज नहीं कर सकते। नहीं,
तब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा जो है दूसरी तरफ होता है और कैमरा का जो सोर्स होता है, नॉर्मली कैमरा का क्या है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। OBS में भी ये कैमरा आपका जो है वो नहीं भेज रहा है। जब आप स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर आपका जो YouTube है वो OBS से ले लेता है। सर इसमें जो मैप का ऑप्शन है, अब इसमें जैसे अगर टच स्क्रीन हो तो हम तो इसको वाइड कर सकते हैं, जैसे हाँ। हमको हम यहाँ से भी हम देख सकते हैं हाँ हमारा जी, स्कूल, हाँ जी। वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल वेबकैम में करते हैं तो तब उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे इसमें जब टच स्क्रीन नहीं है तो उसको कैसे यूज़ करना है OBS में? जैसे मैप आप खोलेंगे गूगल में तो मैप तो आ ही जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि राजूरा कहाँ है, हाँ, तो राजूरा हाँ, से हाँ। फिर गढ़चांदुर आ हाँ, जाएगा, फिर then गढ़चांदुर link से अंबुजा आ जाएगा, हाँ जी। फिर अंबुजा से हमारा स्कूल आ जाएगा, हाँ। तो वो स्कूल भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, हाँ, है ना? तो ये तो लेकिन हम तब कर सकते हैं जब हम उसको टच स्क्रीन से इजीली हो जाता है। तो बिना टच स्क्रीन का हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो इसमें भी तो हो जाता है, माउस से होता है, माउस से क्यों नहीं होगा? वो मैंने एक बार ट्राई किया था सर, वो नहीं। अरे माउस से हो जाता है, सारा पूरा होता है। उसको एक बार दिखाएंगे सर कैसे होता है। माउस से हो जाता है वो, गूगल मैप ना। ओपन तो है भैया। उसमें भी मैंने पूछा तो उसमें भी उसको ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या बता रहे हो आप, क्या मतलब हम नहीं जैसे कर कोई भी सकते? प्लेस आप ले लो, मान लो कॉन्टिनेंट हम बता रहे हैं, अमेरिका बता रहे हैं, अमेरिका। हाँ ये जी, सर वाइड कैसे होगा फिर अभी? कौन सा? वाइड जैसे अमेरिका में कौन से स्टेट्स है वो दिखाने के लिए वाइड होता है ना? वो टच ऑप्शन ये हो रहा है ना, उस पर क्लिक करना है, बस होता जाएगा। ऐसे यहाँ से भी होगा, प्लस और माइनस ये है ना। ये हमें OBS नहीं करना, हाँ, ऑब्वियस में स्क्रीन तो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो जाए। ऑब्वियस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मुझे नहीं हो रहा था, क्या था वो टॉपिक था, रेडियो लाइन इसको था। तो कोई भी चीज़ जो है मोबाइल से ज़्यादा अच्छा डेस्कटॉप पे हो, ये आप ध्यान रखो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल पे हुआ था और डेस्कटॉप पे नहीं हुआ था। इवन गूगल क्लासरूम आप ओपन करोगे तो सारे ऑप्शंस मोबाइल फोन में नहीं होते, या आपको सारा ओपन है। नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे एक्सेस नहीं होता, पूरी स्क्रीन जो है प्रॉपर नहीं आता। इसलिए क्या है, ये जितना भी आप ऑनलाइन का काम कर रहे हो ना, आपको टैबलेट पे करना है, नहीं तो डेस्कटॉप पे करना है। टैबलेट पे प्रॉपर आएगा, डेस्कटॉप जैसा। रोटेशन था, रोटेशन सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब एक बार करके देखना, अगर नहीं होगा तो फिर बता दो, है ना। बाकी और कुछ? तो फिर आज की क्लास वाइंड अप करें।